Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss the previous year question. Our subject is education. Question number 1. A researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research. Such a study is called explanatory study, confirmatory study, descriptive study, exploratory study. The answer is exploratory study. At first you should find out the keywords of the question. What question asked? Question asked when you have no idea about the fact, you just try to find out the initial idea. It is the keyword of this question. इसका आंसर होगा एक्सप्लोरेटरी स्टडी. अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑल्सो कॉल्ड पायलट स्टडी. When a researcher discovering or investigating something from the unfamiliar situation or phenomena, that is called exploratory or pilot study or feasibility study. जब आपके पास कोई आइडिया नहीं है, सिचुएशन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो अब आप लोग इसका इनिशियल आइडिया लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसको एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहता है. देन एक्सप्लेनेटरी स्टडी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. In experimental research, researcher should find out the relationship between cause and effect. Cause and effect का जो relationship है उसको find out करना है experimental research होता है. When researcher observe the effect of independent variable on dependent variable. उसके बाद confirmatory study. Confirmatory study that confirms how well a new treatment works. Its primary objective is testing or confirming a specific hypothesis or research question. The main purpose of the confirmatory study is to provide empirical evidence that either support or refutes a predefined hypothesis or theory. When a researcher trying to test or confirm a hypothesis or research question on a research question, that is confirmatory study. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी. डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज another type of quantitative study. When a researcher describes as it as, उसको जो पता है उस फैक्ट के बारे में, वो फेनामेना के बारे में जो भी पता है उसको एज इट एज डिस्क्राइब करना, वही होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी. The main aims of descriptive study is to describe or explain the characteristics, behavior or phenomena of a particular subject or population. When researchers describe or explain the characteristics or behavior of a particular situation or particular subject, that is called descriptive study.
Second question is, an independent variable is an experimental study. In an experimental study which is manipulated by the investigator at his will is technically known as. जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको दूसरा कौन सा नेम से जाना जाता है? टेक्निकली नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? ट्रीटमेंट वेरिएबल. ट्रीटमेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोल सकते हो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. Researcher can manipulate or control the treatment variable in an experimental research. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है और ट्रीटमेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है. एंड उसका जो इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल में वही चेक करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करता है? रिसर्चर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. ये पता चल गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोल सकते हो और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोल सकते हो. एंड interfering variable. Interfering variables comes intermediate between the independent and dependent variable. Interfering variable क्या करते हैं? जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका बीच, ये दोनों का बीच में जो लिंक होता है उसको डिफाइन करता है. Working like link of independent and dependent variable. उसके बाद moderator variable. Moderator variable define the relationship between independent and dependent variable. जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का बीच का रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है. मतलब हाउ स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको मॉडरेटर वेरिएबल बोलता है. उसके बाद कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल. कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? जब एक्सटर्नल वेरिएबल इज मोर पावरफुल देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो आपका जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उसको कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल बोल सकते हो. व्हेन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च extraneous variable is more powerful than independent variable. तब extraneous variable को confounding variable बोल सकते हो. Then question nong 3. If the distribution of score obtained by a group of examinees on a test is skewed negatively, then which of the following statement is false? Most of the examinees crossed the passing card score of the test. The average difficulty level of the test item was low. The mean score of the examinees was more than the median score. The model value was less than the mean but more than the median.
इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप लोगों को स्क्यूनेस के बारे में पता चलना पड़ेगा। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस एंड एक होता है जो बीच में रहता है, ये दोनों का, जिसका मीन मीडियन मोड इक्वल है। मीन मीडियन मोड इक्वल है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसको बोलता है। यहां क्वेश्चन में बोला है स्क्यूड नेगेटिवली। जब टेस्ट स्कोर is skewed negatively, then that means आपका मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा है मीडियन, उससे बड़ा है मोड। मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड प्रोबेबिलिटी कर्व। जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है तब आपका क्वेश्चन इजी होता है, सबसे इजी। एंड पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो क्वेश्चन और टेस्ट इज डिफिकल्ट। इन पॉजिटिवली स्क्यूड मीन इज लेस देन mean is greater than median and median is greater than mood। इसका मतलब मूड सबसे छोटा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड में, मूड सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है मीडियन, उससे बड़ा होता है मीन। लेकिन क्वेश्चन में बोला है नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज क्रॉस द पासिंग कार्ट स्कोर ऑफ द टेस्ट। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि पासिंग स्कोर कितना होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। देन द एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम वाज लो। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, टेस्ट आइटम जो होगा वो इजी होगा, दैट मीन्स ये करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देन सी नंबर, द मीन स्कोर ऑफ द एग्जामिनीज वाज मोर देन द मीडियन स्कोर। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, mean score is less than median and median score is less than mood, then it is wrong option, false option। and D, the model value was less than the mean but more than the median। मतलब जो mood value है वो मीन से छोटा है, ये तो सही है, बट मोर देन मीडियन, मीडियन से बड़ा है नहीं, ये भी फॉल्स है। क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मीन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है मीडियन, उससे बड़ा होता है मूड। तो करेक्ट आंसर होगा सी एंड डी। द मीन स्कोर ऑफ द एग्जामिनी वाज मोर देन द मीडियन। It is false. The model value was less than the mean but more than the median. It is also false. ये दोनों ही थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द केस स्टडी मेथड is mostly involved in which of the following qualitative research design? Phenomenological design, ethnographical design,
ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, नैरेटिव डिजाइन। इसका आंसर होगा इथनोग्राफिकल डिजाइन। At first you should know what is the case study. Case study means in-depth study. When a researcher analyze or explore or understanding of a specific individual or group or community or cultural phenomena within natural context. जब कोई रिसर्चर कोई भी सिचुएशन के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में और कल्चरल फेनोमेना के बारे में एक्सप्लोर और एनालाइज करेगा, इन डेप्थ एनालाइज करेगा इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, उसको बोलता है केस स्टडी। इसका एक कीवर्ड याद रखना, इन डेप्थ स्टडी। यह है केस स्टडी। एंड इथनोग्राफिकल डिजाइन, इथनोग्राफिक स्टडी क्या होता है? ये कल्चरल स्टडी होता है, पार्टिकुलर सोशल और कल्चरल स्टडी, कस्टम्स, बिलीफ सिस्टम। जब कोई बिलीफ सिस्टम के बारे में और कल्चर के बारे में और कस्टम के बारे में स्टडी होता है, उसको बोला जाता है इथनोग्राफिकल डिजाइन। ये भी नेचुरल सेटिंग में होता है। इथनोग्राफिक डिजाइन टू गेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप और कम्युनिटी। इट इज ऑल्सो ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप और कल्चर और बिलीफ सिस्टम। बट एक बात याद रखना, जे केस स्टडी इज नॉट लिमिटेड टू इथनोग्राफिकल डिजाइन। यह इथनोग्राफिकल डिजाइन में लिमिटेड नहीं है केस स्टडी। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इन इथनोग्राफिक रिसर्च टू delve deeply into a specific cases within a particular cultural और सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो कभी कभी क्या होता है, इथनोग्राफिक रिसर्च में यूज होता है केस स्टडी कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन में और कोई पार्टिकुलर कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद ऑप्शन है फेनोमेनोलॉजिकल डिजाइन। फेनोमेनोलॉजिकल डिजाइन, फेनोमेनोलॉजिकल डिजाइन मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है उसके बारे में स्टडी करना, वो होता है फेनोमेनोलॉजिकल डिजाइन। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और गेन इनसाइट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन इट इज एन इंडक्टिव डिजाइन और बॉटम अप डिजाइन। जब उस सिचुएशन के बारे में कोई भी प्री कॉन्सेप्ट आइडिया नहीं है आपके पास, बट उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपको एक थ्योरी डेवलप करना है, तब आप क्या करोगे? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। रिसर्चर विदाउट प्री कॉन्सेप्ट आइडिया डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर देगा। जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिल जाएगा तब तक डाटा कलेक्शन किया जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट मीन्स नो न्यू डाटा। जब न्यू डाटा मिलना बंद हो जाएगा तब डाटा कलेक्शन इन कर दिया जाएगा। नैरेटिव डिजाइन, नैरेटिव डिजाइन इसका कीवर्ड है स्टोरी टेलिंग, बिब्लियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोरीज,
डायरीज, कोई भी एक सिचुएशन के बारे में स्टोरी जैसा कोई और स्टोरी टेलिंग जैसा कोई स्टडी करना। देन क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement defines the basic philosophy, theory and practice of teaching children according to critical pedagogy? At first you should understand the concept of critical pedagogy. The concept of critical pedagogy given by Paulo Freire. पाउलो फ्रेयर ने क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया है। एंड क्रिटिकल पेडागोजी क्या होता है? जब कोई भी ट्रेडिशनल टीचर सेंट्रिक एजुकेशन को चैलेंज करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है। लाइक क्रिटिकल पेडागोजी चैलेंज ट्रेडिशनल teacher-centric model of education, and critical pedagogy seeks democratic and liberating learning environment. Its main aim is to empower the student by encouraging critical thinking, social justice and political consciousness. Critical pedagogy also emphasized the importance and questioning the power dynamics in the educational system or broader society. इसका मेन प्रिंसिपल्स क्या है? क्रिटिकल पेडागोजी का मेन प्रिंसिपल्स इसके बारे में जानना जरूरी है। डायलॉग एंड कोलैबोरेशन, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम पोसिंग अप्रोच, empowerment and social transformation. अब क्लियर हो गया क्रिटिकल पेडागोजी? देन कम टू द पॉइंट। ऑप्शन, emphasize on concept like compassion, kind-heartedness and healthy dialogue to ensure children well-being and social development. It is not the correct answer. We already understood the concept of critical pedagogy. Questioning dominant beliefs or world view about knowledge and learning and discover deeper meaning and root cause of the phenomena. अभी भी हमने क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या? क्रिटिकल पेडागोजी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल टीचर सेंट्रिक मॉडल and questioning the power dynamics of education system. वही बोला है questioning dominant belief और world view about knowledge and learning. यही करेक्ट आंसर है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक्सेप्टिंग मल्टीकल्चरल नीड्स एंड क्रिएट इक्वालिटी कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म। ये भी नहीं है। चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट knowledge, look for the alternative and create knowledge through thoughts, experience and dialogue. ए भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। थैंक यू।